हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे क्योंकि ये यूनिट बहुत आसान है और 7 मार्क्स की भी आती है। तो जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं वो उस पे ज़्यादा ध्यान दें। फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ऑन द basis of relative value of electrical conductivity and resistivity. The solids are broadly classified as number 1 metals, number 2 insulators, or number 3 semiconductors. Metals, those solids which have high conductivity or low resistivity. The value of conductivity lie between 10 की power 2 to 10 की power 8 Simon per meter, and value of resistivity lie between 10 की power minus 2 to 10 की power minus 8 ohm meter. Second is insulator, those solids which have low conductivity and high resistivity. The value of conductivity lie between 10 की power minus 11 meter to 10 की power minus 19 Simon per meter, and resistivity lie between 10 की power 14 to 10 की power 19 ohm meter. Third is the semiconductor, those solids which have conductivity and resistivity intermediate to metals and insulators. The value of conductivity lie between 10 की power 5 to 10 की power minus 6 Simon per meter, and resistivity lie between 10 की power minus 5 to 10 की power 6 ओम मीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसमें हमारी दो बैंड्स बनते हैं, एक बनता है बैलेंस बैंड और दूसरा बनता है आपका कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड आपसे क्या कहता है? दिस बैंड कंटेन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस बैंड may be partially or completely filled with electrons. This band is never empty, ये कभी खाली नहीं होता। Electrons in this band do not contribute to electric current. Electron in this band do not contribute to electric current. यानी कि इस बैंड के अंदर आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं या कंप्लीटली फील्ड होंगे, लेकिन कभी भी ये एम्प्टी नहीं होगा। सेकंड इज कंडक्शन इलेक्ट्रो बैंड। सेकंड इज कंडक्शन बैंड। In this band, electrons are rarely present. The bands each either empty or partially filled. Electrons in the conduction band are known as free electrons. These electrons contribute to the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंट्रीब्यूशन देता है अपना। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम बी द प्योर सेमीकंडक्टर। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आउटरमोस्ट शेल में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ईच सिलिकॉन एटम अगर हम लेते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है आपके पास? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 के बराबर होगा। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डिक्रीजेस। ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में है। अगर जो आपको ये डिस्टेंस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग दिखाई दे रही है, डी, सी, बी, ए, जैसे-जैसे ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, बताओ एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे इसे बताना है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डिक्रीजेस। सबसे पहले केस नंबर 1, R equal to D. When inter-atomic spacing is very large, each atoms in the silicon crystals behaves independently and has discrete energy levels. यानी इन दो पॉइंट पर सिलिकॉन का प्रत्येक एटम इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होगा। सेकंड इज R इज इक्वल टू C, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डिक्रीजेस, द एनर्जी बैंड corresponding to 3s and 3p are spread more, and energy gap between
these bands decreases. दिखाई दे रहा होगा ये वाली स्टेज. Third is R equal to B, interatomic spacing further decrease. The energy gap between 3s and 3p disappear and band spread more. In this case, all 8 and electrons, 4 are filled and 4 are empty, are now continuously distributed. नेक्स्ट आपके पास R इक्वल टू A, जिसे आप थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं. Filled and unfilled energy levels are separated by an energy gap called forbidden energy gap. The energy of forbidden energy gap is denoted by Eg. The lower filled energy band is known as valence band and upper unfilled energy band known as conduction band. ये ध्यान रखेंगे आप लोग सभी. Next, the minimum energy required for shifting electrons from valence band to conduction band is known as energy band gap. If lambda is the wavelength of light radiation is used in shifting the electrons from valence band to conduction band, then energy band gap is Eg equal to h nu hc by lambda के बराबर होता है. h be the Planck constant and c be the speed of light. The forbidden energy gap Eg in a semiconductor depends upon the temperature. Fermi energy, it is the maximum possible energy possessed by free electrons of a material at absolute temperature. इसको कहते हैं हम लोग फर्मी एनर्जी कहते हैं. ध्यान रखना इस बात को आप. Next topic is difference between metals, insulators and semiconductors on the basis of band theory. पहला metals. In metals, the valence band and conduction band are overlap to each other. On the other hand, there is no forbidden energy gap between valence band and conduction band. The electrons in the overlapping region of the energy are called conduction electrons. As there is a large number of conduction electrons, so conductors or metals are the good conductor of electricity. हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी फॉरवर्डन एनर्जी गैप नहीं होता. इलेक्ट्रॉन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो कंडक्टर्स और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट. नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर्स. In insulators, the valence band are completely filled and conduction band is completely empty. And large for energy gap between valence band and conduction band. It is in the order of 3 electron volt or more. यानी Eg is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो सकता है, जैसे कि आपको ये गैप में दिखा रखा है. इसे आप क्या कहोगे? बैलेंस बैंड. इसे क्या कहोगे? कंडक्शन बैंड. और ये बीच में जो दिखाई दे रहा गैप, इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. द इंसुलेटर्स can conduct electric current only if the electrons from valence band can move to the conduction band. But electron in the valence band have energy 0.025 electron volt. This energy is very small as compared to energy of the forbidden energy gap. Therefore, electron cannot jump from valence band to conduction band. जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो इंसुलेटर्स इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल दे सकते हो डायमंड. क्या दे सकते हैं हम लोग? डायमंड दे सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में जो आपके पास बैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फील्ड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी एंड स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. इन केस ऑफ सिलिकॉन फाउंड एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा. अगर हम बात करते हैं एट 0 केल्विन, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड डू नॉट एक्वायर एनर्जी टू जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. इट मींस semiconductor behaves as an insulator, but at room temperature
electron acquire some energy. This energy is greater than energy of forbidden energy gap. Electron easily jump from valence band to conduction band. Therefore, it behaves as an conductor. तो ये आपका जो टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, ये डायग्राम की सहायता से आपको तैयार करना है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डायग्राम तो बनाना आना ही चाहिए आपको इसके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। It is a pure semiconductor and no impurity added in it. Silicon or germanium be the examples of intrinsic semiconductors. In intrinsic semiconductor, the number density of electrons equal to number density of holes is also equal to the number density of intrinsic semiconductor के बराबर होता है हमारे पास। When an electric field is applied across an intrinsic semiconductor, electrons and holes move in opposite direction, so that the total current in the pure semiconductor is I equal to IE plus IH. IE का मतलब करंट इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड IH का मतलब करंट ड्यू टू होल्स। नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर 1, an intrinsic semiconductor will behave as a perfect insulator at absolute zero temperature. Number 2, with increased temperature, density of holes electron pairs increases and hence the conductivity of intrinsic semiconductor increases with increase in temperature. On the other hand, resistivity decreases as the temperature increases. जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टिविटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी और कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। थर्ड आप देख सकते हो दी सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी को ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। क्या कहोगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर in order to increase its conductivity. Its order to increase conductivity is known as doping. कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम किसी दूसरे ग्रुप की इंप्योरिटी प्रेजेंट कर दें, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करेंगे तो एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। A doped semiconductor is known as extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductor are of two types. First is the N-type semiconductor and second is the P-type semiconductor. First हम बात करते हैं N-type semiconductor की। When a pure semiconductor of silicon and germanium is doped with group 5 pentavalent impurities like arsenic, antimony, phosphorus, we obtain N-type semiconductor. अगर हम 15 ग्रुप की impurities आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फास्फोरस को मिला देंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कॉल्ड नॉन एज डोनर एटम कहते हैं। इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सच सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इनके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होता है। इट इज कॉल्ड डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द डोप्ड impurity atom donates one free electrons to semiconductor for conduction. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carriers and holes are the minority charge carrier. इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखते रहे। जो पॉइंट आपके काम के हैं इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है
पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर से पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बता चुका हूं कि जिसके अंदर हमने क्या किया था, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 15th ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड की थी। अब आप ध्यान देंगे कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड with a group 13 trivalent impurities like aluminum, boron, indium, we can obtain p-type semiconductor. The trivalent impurity atom are known as acceptor atoms कहते हैं. It is called the p-type semiconductor because the conduction of electricity in such semiconductors due to motion of holes. यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो होल्स के मोशन के कारण पैदा होती है. नेक्स्ट, it is called acceptor type semiconductor because a doped impurity atom creates a hole in semiconductor which accepts the electrons, resulting conduction of p-type semiconductor. Next is, in p-type semiconductors, holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. Next topic is p-n junction diode. When donor impurities are introduced into one side and acceptor into other side of the crystal of an intrinsic semiconductor is known as p-n junction diode. हम ये कह सकते हैं कि when n type semiconductor are joined with p type semiconductor to form a junction known as p-n junction diode, semiconducting diode, और इसे आप लोग क्या कहते हो, जंक्शन डायोड कहते हैं. ये इसका सिंबल है जिसके अंदर आपके पास जो एक ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो डंडा सा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं. First is the formation of depletion layer. There is high concentration of holes in the p region and high concentration of electrons in the n region of p-n junction. The holes from p region and electrons from the n region diffuse through the junction. The electrons which diffuse through the junction to p region recombine with holes. As the result of this recombination, holes disappears and excess negative charge means electrons appears in the p region of the junction. When holes diffuse through the junction, the excess positive charge appears in end side of the junction and form a thin layer known as depletion layer. The size of this layer is 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर या 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होगी. इसी में ही अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की, a negative potential applied near the junction which opposes the electron and holes to cross the junction is called barrier potential. अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ सिलिकॉन तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू आपकी जो होगी 0.7 वोल्ट होगी. अगर बात करेंगे इन केस ऑफ जर्मेनियम तो उसकी वैल्यू आपकी 0.3 वोल्ट के बराबर होगी. The width of depletion layer and magnitude of potential barrier depends upon the nature of the material of the semiconductors and concentration of impurities present. Thickness of this region in order of 1/10 of an micrometer. Next topic is forward biasing of a p-n junction. When the positive terminal of the battery connected with the p sides and negative terminal of the battery connected with n sides is known as forward biasing. In forward biasing, the width of the depletion layer decrease and barrier height reduce yani decrease. The resistance of the p-n junction becomes low in forward biasing. कहने का मेरा मतलब है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर की हाइट क्या होगा, डिक्रीज, बैरियर हाइट क्या होगी, डिक्रीज, और रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन वो भी क्या होगा, डिक्रीज. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन. When the positive terminal of the battery is connected to the n region and negative terminal of the battery is connected to the p region, known as रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. इस पीएन जंक्शन को आप रिवर्स बाइस कहते हो. इन रिवर्स बाइसिंग the width of depletion layer increases and
barrier height increase. The resistance of PN junction becomes high in reverse biasing. ध्यान रखना इस बात को कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर का साइज ज्यादा होता है, उससे उसकी जो पोटेंशियल हाइट होती है वो भी ज्यादा होगी और पीएन जंक्शन के जो बीच का रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना सीख लें, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स भी करना बनाना सीख लें, क्योंकि एग्जाम में ये 101% आएगा ही आएगा। इसके बाद हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। आर स्टैटिक, ये होती है V अपॉन I। नेक्स्ट आपके पास है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब होता है स्मॉल चेंज। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट थ्रू द जंक्शन। RD इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। नेक्स्ट टॉपिक, आइडियल डायोड। Ideal diode means it work only in the forward bias but do not work in the reverse bias। यानी केवल फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता, इसीलिए इसे आप आइडियल डायोड कहते हैं। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC voltage into DC voltage। The diode is used as a rectifier। It work only in the forward bias but do not work in the reverse bias। इसे आप उसका प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। रेक्टिफायर दो तरह की होती है, वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड दो तरह की होती है, फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। आपको पेपर में 100% रेक्टिफायर कोई ना कोई पूछा जाएगा। तीन चीज आपसे पूछेगा, रेक्टिफायर का डायग्राम, वर्किंग और वेव फॉर्म। आप इजीली उसे बना सकते हैं। फर्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with its primary coil connected with AC source and secondary coil connected with diode and external resistance RL through which output is obtained। जैसे कि यह डायग्राम आपको दिखा रखा है, डायग्राम को आप देख भी पा रहे हैं। जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग में हमारे पास दो साइकिल्स होंगी, एक होगी आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होगी आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव और ये आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, डायोड D is forward bias, flow the current in the circuit through which output is obtained। Due to negative, during the negative cycle of half cycle of AC, due to mutual induction, diode D is reverse bias, do not flow the current in the circuit, no output is obtained। आप क्या देख रहे हो, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर तो आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट हमें नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली हाफ साइकिल इज रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम आपको दिखा रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with its primary coil connected with AC source and secondary coil connected with two diodes D1 and D2 with external resistance RL through which output is obtained। इसमें भी वही दो केस होंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC एंड सेकंड इज द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी हमें आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल से भी हमें आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब देख रहे हो वेव फॉर्म कैसी है, पॉजिटिव से भी आउटपुट मिला, नेगेटिव से भी हमें आउटपुट मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट साइकिल इज रेक्टिफाइड। इन दोनों के दोनों टॉपिक्स के अंदर एक खास बात ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बाई चांस आपके पास कोई भी एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर में फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे जितनी आप दे रहे हो हाफ में उतनी ही बोलोगे, यानी 10 हर्ट्ज। और अगर आप बात करोगे फुल वेव की, तो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, यानी 10 हर्ट्ज बोल रहे हो तो कितना बोलोगे, 20 हर्ट्ज बोलोगे आप। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर में जितने भी 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चंस आपको
इस यूनिट से सफिशिएंट हो गए। अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके सभी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी 1 मार्क्स क्वेश्चन को भी यहाँ इंक्लूड कर सकूं, तो आप काफी ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ दे आर फॉर्म्ड? व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ दे आर फॉर्म्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर? ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अगर आप पहले 2 क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। पी टाइप में एक्चुअल में आपको क्या बताना है? पी टाइप में क्या रहता है कि जो आपकी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जब भी हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐड करते हैं तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज आर देयर। तो आपको ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनके नाम याद होने चाहिए। सिमिलर पैटर्न में एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में भी आपको सभी जितने भी डोपेंट एलिमेंट्स हैं आपको उनके नाम पता होने चाहिए। अब हम 3 मार्क्स क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ पी इंजंक्शन, डिफाइन द डिप्रेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर इन इट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट प्रोसेस अक्रॉस द जंक्शन होती है पी एन जंक्शन डायोड में, पहले आप वो एक्सप्लेन कर दें, फिर पोटेंशियल बैरियर बता दें कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। What is next question? What is doping? State two difference between p type and type semiconductor. तो देखें ये तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से ही ये वाला हिस्सा प्रिपेयर हो गया और जो ये बचा है व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज। सिंपल, ये एज इट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में यहाँ पर आपको 3 टर्म्स में बात करनी है। पहला बैंड डायग्राम, जो कि आपका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। दूसरा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, आप यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल, और इसी के साथ जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये पेपर में पूछे जाते हैं। साथ में ये बैंड डायग्राम भी पूछता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में कितना गैप होता है सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और कंडक्टर के लिए। इसके बाद हम आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहला है आपके पास ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एक्सप्लेन देम यूजिंग एप्रोप्रिएट सर्किट डायग्राम। एक्चुअल में यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम भी ऐड करके दिखाना है। जैसे हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जब कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। जब भी आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर जो आपका करंट रहता है वो मिली एम्पियर में रहता है और नीचे जो करंट रहता है वो हमारा माइक्रो एम्पियर में रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी प्रॉपर एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स आउटपुट एंड इनपुट वेवफॉर्म। ये सेम क्वेश्चन है 7th के साथ, एक में हाफ वेव है एक में फुल वेव है। आपको यहाँ पर प्रॉपर सर्किट डायग्राम के साथ और रेक्टिफायर काम क्या करता है, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, आपको ये बताना है। कभी कभी यहाँ से प्रिंसिपल भी पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल भी बताना है कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ड्यूरिंग रिवर्स बायस डायोड एक्ट एज ओपन सर्किट। और यहीं पर आपको इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म भी एक्सप्लेन करनी है कि इनपुट और आउटपुट किस तरीके से
फुल वेव और हाफ वेव में एक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इज द जंक्शन डायोड डी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस इन द गिवन फिगर। एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके पास एक डायोड दे दिया जाएगा और इसको कुछ पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे -5 वोल्ट और ये +5 वोल्ट। ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाएगा कि आपका ये ग्राउंडेड है, पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट लगा दिया है। तो बताइए कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। और अगर आप ये 6th और 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फुल वेव एंड हाफ वेव रिएक्टिफायर। और इस टॉपिक में आपको यहाँ पर रिफिल फैक्टर, एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म और कॉस्ट, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि किस में कितने डायोड हो सकते हैं। इन 4 पॉइंटों में आप इसको लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आता है। 3 पॉइंट, अगर ये आप 3 पॉइंट लिख देते हैं तो आपका ये 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है, और अगर आप चाहें तो 4 पॉइंट भी लिख दें तो आपके 3 मार्क्स इसमें कंफर्म हो जाते हैं। आप चाहें तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं।